अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट 15 डेज़ में आपने एमडी कैट की फाइनल प्रिपरेशन को कैसे वाइंड अप करना है। सो आई वाज थिंकिंग लास्ट 20 डेज़ का कोई प्लान शेयर करूं, बट आई एम अ बिट लेट, सो लेट्स गो विद द लास्ट 15 डेज़ प्लान। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी उनमें से कुछ ऐसी होंगी दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई एमडी कैट जर्नी और कुछ ऐसी होंगी दैट आई लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। So let's start with the first point. Alright, so our first point is mindset. In 15 days में your mindset it matters a lot. Okay, so what you people think कि एक ऐसा student who genuinely wants to be a doctor, उसका mindset just 15 days before the final test कैसा होना चाहिए? Honestly speaking, if you really want to be in the field of medical, then I would say just cut yourself off from this world just for these 15 days. अच्छा, सुनने में ये थोड़ा सा weird लगता है and also it seems a bit difficult. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वाकई डेडिकेटेड है सो उसके लिए आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। लाइक मेडिकल इट डिमांड्स डेडिकेशन, सो इफ़ यू कैन नॉट sacrifice your life, your happiness for the field of medical, then medical is not meant for you. Alright, so being very precise, I would say in 15 days में पढ़ने, सोने, खाने और इबादत के अलावा आपकी और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. And guys, please don't skip your prayers. In fact, add some extra time to it. Totally cut yourself off from your mobile phone, from your social media accounts, from your friends, and everything else that distracts you. Believe me, there is nothing gonna change, nothing gonna happen if you are not going to use your mobile for 15 days. It's just a matter of few days. You will be satisfied. And let me tell you one thing, you people get almost 4 to 5 months after your MD-CAT before joining the medical college. Just invest your time in productive things right now. And then you will get a lot of time for all the stuff that bothers you now. आप सोशल मीडिया पे कितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को देखते हैं. Believe me, वो सब इसी फेज से गुजर के ही उस स्टेज तक पहुंचते हैं. If they can make their way to the medical college, why can't you? So this should be the mindset of a dedicated student during the final days. Right, so let's move towards the next point, that is sleep. So ideally, a human body, it requires a minimum sleep of almost 6 hours. So I would also suggest कि आप 6 hours की sleep window रखें. It should not exceed 7 hours and not less than 5 hours. Because then it will affect your health. And please don't compromise on your health. Eat healthy, sleep healthy, keep yourself vigilant and active. Alright, so next we are going to talk about the FLPs and the final days practice. Okay, so you people have 2 weeks, right? Or in 2 weeks में से just keep 1 week at the side. उस week में you are not going to learn anything new. You are not going to practice anything new. Just the revision of old knowledge. So जो आपके पास 1 week होगा उसमें से भी आप एक दिन को साइड पे कर दें. I will tell you later कि उसमें क्या करना है. Rest you are left with 6 days. So in 6 days में what you will do is you will solve 6 FLPs, 1 FLP per day. I hope कि आपने past papers तो practice कर लिए होंगे अभी तक. Still, if you are left with any past paper, you can solve it in these 6 days. The other thing that you will do is you will solve the test of other provinces as well. That is the MD-CAT 2023 of other provinces. For example, if you belong to KPK, तो आप क्या करेंगे? आप UHS 2023 भी solve करेंगे. You will also solve the federal test of 2023. Sindh का I will not prefer a lot, but Punjab and federal is a must. And also if you belong to Punjab, then KPK, KMU MD-CAT 2023 is a must. Right, so in 6 days में आपने past papers को solve करना है. इसके अलावा आपने दूसरे provinces के MD-CAT टेस्ट को solve करना है. And then आपने 6 FLPs भी practice करने हैं. Believe me, अगर जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, if you follow it as it is in 6 days का plan, तो you will have a very good practice. ओके, सो मैंने एक रफ सा आइडिया आपको दे दिया कि इन 6 डेज़ में क्या करना है. अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जस्ट लीव दिस 1 डे फॉर द टाइम बीइंग. सो उस दिन आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. बेसिकली आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल दैट पर्टिकुलर डे, सो ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस आपने जितने भी मिस्टेक्स किए हैं, जितने भी MCQs आपसे रॉन्ग हुए हैं, आपको एज आई टोल्ड यू बिफोर के उनको साथ साथ लिखें अपने नोट्स में. सो आई होप कि आपने लिखा होगा. आप अब उन नोट्स को ओपन करेंगे एंड यू विल गो थ्रू दोज रॉन्ग MCQs वंस, सो डैट कि अगर उससे कोई सिमिलर MCQ आ जाए तो यू डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन. सो इस तरह से आपके ये फर्स्ट 7 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं. लास्ट 7 डेज़ जो आपके पास रहते हैं, व्हाट यू विल डू इज़ उनमें आप जस्ट रिवीजन करेंगे. ऑलराइट, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम टेबल बना लें दैट सूट्स यू. सबसे पहले आप केमिस्ट्री की बुक 1 एंड बुक 2 को रिवाइज कर लें, और यू कैन गो फॉर द फिजिक्स एज वेल फॉर द फर्स्ट. एंड सेकेंडली फिर आप केमिस्ट्री कर लें और लास्ट पे बायो रखें, बिकॉज बायो इज़ जस्ट अ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट. तो उसमें आपका नॉलेज जितना फ्रेश रहेगा आप उतने अच्छे से MCQ सॉल्व कर सकेंगे. एंड सेकेंडली लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को भी इनके साथ ही एडजस्ट करें. आई होप प्रैक्टिस तो आपने कर ली होगी, बट उसके रूल्स को रिवाइज करना इज़ मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर रूल्स आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे स्पेशली फॉर इंग्लिश, तभी आप ग्रामर बेस्ड MCQ सॉल्व कर सकेंगे. ऑलराइट, जो आपका लास्ट डे होगा दैट इज़ द डे बिफोर योर MD-CAT 2024.
इंशाल्लाह। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उस दिन पागलों की तरह पढ़ें। जो आपने पढ़ना था, यू हैड 12 years ऑफ योर लाइफ, आपने उसमें पढ़ना था। सो प्लीज़ डोंट पैनिक योर सेल्फ, स्टे रिलैक्सड, स्टे काम। उस दिन के लिए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव गिवन माई बेस्ट, दैट्स ऑल। सो पैनिक ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स द ह्यूमन नेचर कि ऑब्वियसली अगर कल मेरा टेस्ट हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आज सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ कि बस यार मैंने जो करना था कर दिया, अब मैं और नहीं पढ़ूंगी। तो आई थिंक इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि फिर आपको एक पीस ऑफ माइंड भी नहीं होता ना कि यू फील लाइक लेट मी डू समथिंग मोर। सो उस दिन के लिए भी फिर आप जो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, दैट आई वुड सजेस्ट कि जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, दैट इज़ फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल जो बुक के टेबल्स हैं, लाइक एंजाइम्स की पीएच, जो आपका एंजाइम्स का चैप्टर है उसमें, देन फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूला चार्ट्स अगर आपके पास हों, खुद अगर बनाया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया तो जस्ट गूगल इट, वो आप अपने पास सेव कर लें। उस दिन ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, आप अभी उसको सेव कर लें। सिर्फ उन फार्मूलाज को रिवाइज़ कर लें, जो टेबल्स हैं आपकी बुक में उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा कोई भी हैवी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी खुद पे बिलीव रखें, अल्लाह पे बिलीव रखें। अगर आपने वाकई मेहनत की है देन यू आर गोइंग टू गेट इट, इट्स ऑब्वियस। सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप एक चीज़ के लिए दिल से मेहनत करें और फिर वो आपको ना मिले। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अल्लाह से दुआ करें और ईजी होके एग्ज़ाम सेंटर में जाएं। गौर से पेपर को पढ़ें एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग, manage your time and also manage the OMR sheet. Inshallah you will do it, you will come out of the exam center happily. Alright, so it was all for this video. I hope कि जो मैं पॉइंट्स आपको समझाना चाह रही थी आपको वो समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट बिलो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई नो ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट इट्स ओके, इट विल पास। सो डोंट लूज़ द करेज, कीप अप द हार्ड वर्क। I wish you very best of luck for your exam. Allah Hafiz.